this book became an emotion for me to interact with people actually, whatever my writings were, even my journals. That Monsoon Express is about what you have lived. Like I have seen your book details and book blurb and everything. So you're covering actual life. Traveling is the first thing actually which is nearest to me, closest to my heart. ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया पता नहीं Hi, my lovelies. I'm author Swamini, and today I am back with another author interview for TLB's author interview series. Today we have with us author Satish Kumar, who is an IT engineer by profession and a writer by passion. He loves traveling, train journeys, exploring various places, interacting with people, and he is an enthusiast to learn about their culture and their languages. The author Satish Kumar is basically from Delhi, but he has lived through various cities like Mumbai, Pune, Hyderabad, Bangalore, Coimbatore, and all of his experiences are visible in his debut book, The Monsoon Express. Monsoon Express is a collection of short Hindi stories where he explores various aspects of life. Like traveling, job, startup, how the IT life is, then different relationships in our life, college life, hostel life. So he explores various human aspects in his first book. Also, he is an occasional blogger, and you can find him at satishkumar29.blogspot.com. So this is our versatile author today, who is an IT profession as well as an author. So before we begin with the questions, I would like to announce that author Satish Kumar is going to gift a copy of his book, The Monsoon Express, to the best commenter on the live. So all my viewers, just be ready and be the best commenter on today's live interview. So welcome author Satish Kumar. As we have seen in your bio that you are an IT engineer. So how does this contrasting profession with writing balances in your life? Okay. Yeah, before answering your question, actually, I would like to thank you for introducing me. Actually, that was quite descriptive, and this quite actually you have covered, I think, everything mostly in short. So, and I would like to thank TLB Club as well. They organized this chit chat session with you, right? And it gives me an opportunity to interact with people and obviously to introduce my book as well, because there are many people who maybe I have. They have seen this book, they have on my social media profile, and I have verbally told them, but they don't know what is this book about, and that gives an opportunity to really connect with book actually. Yeah. So thanks a lot again, and yeah. So now to answer your question, right? So actually, how this coexists? Actually, this thing. Actually, my education background is in IT actually, so that's how. Hence the. I'm an IT engineer, and this writing means actually my writing started since my school days. So this started as writing means in the form of poetry actually. So that was the first thing I started, and then during my college days I started that blog page which you introduced. So there it was kind of journals actually. I was posting my journals over there. So I'm sorry, maybe since this book is in Hindi actually, maybe I'll try to keep the conversation in Hindi as well. So yeah, तो उस टाइम पे जैसे है ना कि जर्नल्स मतलब वो जर्नल मतलब डे टू डे जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो गए और जो भी आपने कुछ ऑब्जर्व किया देखा, तो वो मैंने ब्लॉग पेज के थ्रू स्टार्ट किया. और फिर इन कुछ साल पहले ना इन रिसेंट ईयर्स माय राइटिंग केम इनटू द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. तो कहीं ना मतलब कैसे है कि मतलब आई थिंक समवेयर देयर वर फ्यू थिंग्स मे बी फ्रॉम माय चाइल्डहुड डेज. कुछ चीजें रहती है ना, हम लोग कुछ किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कह नहीं पाते. तो दिस बिकेम अ मीडियम फॉर मी टू इंटरेक्ट विद द पीपल. Okay, maybe that poetry and that journals, they are still unpublished. Maybe that I'm planning to publish maybe later. But yeah, so this story writing came into picture, and I see this as a, also whenever I do write something, right, it gives me a sense of creating something new, right? So that's, I feel like miss I feel passionate about, and miss it is like
I'm actually interacting with people because that's my personal interest, right? That's where it correlates with my personal interest, and that's how it becomes an emotion. You can say like that. This book became an emotion for me to interact with people. Actually, whatever my writings were, even my journals, maybe the audience was less, but yeah, this became a medium for me to interact. So that's how I see it, and that's how these. जो ऑथर अपने एक्सपीरियंसेस से लिखते हैं एंड यू नो दोज राइट इट मे बी अबाउट योर लाइफ और इट मे बी फिक्शनल बट व्हेन इट इज रिटन फ्रॉम योर इमोशंस इट ट्रूली रीचेस योर रीडर्स मतलब वो चीज रीडर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है सो दैट्स वेरी नाइस टू नो एंड जैसे आपने बताया दैट मॉनसून एक्सप्रेस इज अबाउट what you have lived like I have seen your book details and book blurb and everything so you're covering actual life you know experiences we can call jo human experiences hote you're covering those and in the book also it is mentioned that there are small stories from cities across India like Delhi, Mumbai Right. so is this book completely inspired from your personal experiences? Yeah, actually, living in so many cities, maybe that was not the driving factor behind writing this book. But yeah, means since I have lived in so many cities, right? So इससे ना मतलब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मतलब अलग अलग शहरों में, दिल्ली में, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, बैंगलोर, कोयम्बटूर, तो हर जगह के अलग अलग लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, उनका जो लहजा रहता है, बात करने का लहजा रहता है, तो उससे ना मतलब जो जब मैं कहानियां लिखना चालू करा तो उससे एक सपोर्ट मिला मतलब कि किस टाइप के कैरेक्टर होते हैं, उनका बोलचाल का क्या रहता है। और ऑब्वियसली जब प्लेसेस जो भी मैंने प्लेसेस मतलब उस स्टोरीज में डाले हैं जो भी उस शहर के, तो कहीं ना कहीं मतलब ऑब्वियसली आई कैन पर्सनली कोरिलेट विद दोज, सो दैट बिकम्स सपोर्टिंग फैक्टर फॉर मी। और मेरे लिए मतलब एक ये होता है ना थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए थीम्स को भी और कैरेक्टर्स को भी और प्लेसेस को भी, मतलब तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो दैट्स हाउ आई लुक एट इट लाइक दैट एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन दैट मेनी सिटीज एक्चुअली। या तो दैट्स वेरी नाइस। मतलब अपार्ट फ्रॉम सिटीज जो आपके बुक इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें कवर किए हैं एंड यू पर्सनली लव ट्रैवलिंग एंड ट्रेन जर्नीज, then you have in the stories you have written about relationships, job, life, startup, so which of this theme is your most favorite one? Yeah, so to answer your first part, maybe actually there are some other parts of India as well which I have covered here in these stories. So they are mostly maybe from north side because book is in Hindi. Hindi readers will be able to connect. So MP की भी stories हैं, UP की भी है, और some characters from Rajasthan. So all over India में characters हैं। और जो है ना मतलब कि उसके बाद जो ट्रैवलिंग आई वुड से कि ट्रैवलिंग या सो आउट ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स जो भी मेरा फेवरेट है और द वन विच इज क्लोजेस्ट टू मी इज एक्चुअली ट्रैवलिंग एक्चुअली। सो एंड या आई विल शो, आई हैवंट शो द बुक, सो if somebody has not seen the book, actually this is how it looks like. So this is book cover. तो जैसा भी एक्चुअली टाइटल है ना बुक का, जैसे मॉनसून एक्सप्रेस, तो इसको ये भी मतलब इसके पीछे भी एक थॉट प्रोसेस है कि मतलब व्हाई द नेम इज मॉनसून एक्सप्रेस। तो ये क्यों आया, मतलब नाम क्यों आया, वो भी मतलब एक पर्सनल इंटरेस्ट से कनेक्ट है। तो मॉनसून जैसे अपना घूमने फिरने का शौक जो भी रखते हैं, जैसे मैं, बाकी कोई भी रखता है, तो मॉनसून काफी प्लीजेंट वेदर होता है घूमने फिरने का। एंड एक्सप्रेस कम लेट्स टू ट्रेन एक्चुअली। तो ट्रेन मतलब घूमना फिरना शौक है, ट्रेन जर्नी का शौक है, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, राइट। तो दैट्स हाउ एक्चुअली जो स्टार्टिंग थॉट था वो था कि ऑब्वियसली आई हैव टू यू नो राइट फॉर द ट्रैवलर्स एक्चुअली, राइट। तो ये मतलब दैट इज द थीम एक्चुअली, ये जो मेरी पसंदीदा थीम है ये है। और उसी के ऊपर मतलब मैं बोलूंगा कि ट्रैवलिंग और मतलब एक चीज और कहूंगा कि ये जो किताब है ना एक्चुअली में ट्रैवलिंग इज द फर्स्ट थिंग एक्चुअली विच इज nearest to me, closest to my heart। और ये किताब है ना, मतलब किताब तो बाद में आई एक्चुअली में, किताब इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट।
जैसे लोगों से इंटरेक्ट करने का, उसके अलावा जैसे है ना कि कोई भी आपको लोग मिला, इंटरेक्ट कर दिया। ट्रेन भी ऐसे ही होती है ना, जैसे हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, स्ट्रेंजर लोगों से घुल मिल जाते हैं। तो मैं भी मतलब मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसे ही है, मैं किसी से घुल मिल जाता हूँ मतलब ऐसे, और एक पर्सनल कनेक्ट भी बनता है उससे। और यही मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे कोई भी बंदा मिला, कोई भी लोग मिले, तो उनके बारे में जानना, उनका बैकग्राउंड है, कहाँ से है वो लोग, ठीक है, वो उनका मतलब कल्चर कैसा है, इवन लैंग्वेजेस में, इवन जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं ऑफिस में या फिर एक कोलीग हैं या फिर, तो उनको पता है कि कुछ भी, जैसे कोई तेलुगु है तो तेलुगु वर्ड्स भी मैं सीख लेता हूँ, कोई तमिल है तो तमिल भी सीख लेता हूँ, बंगाली है तो मतलब कहीं ना कहीं एक जो एक है ना, दैट बिकम्स मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है, और बिकम्स अ रीजन फॉर मी टू कनेक्ट विद पीपल एज वेल। तो उसी से मतलब ये बुक का टाइटल भी आया, और बुक की जो स्टोरीज हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक्चुअली जैसे ट्रैवलर होता है, ट्रेन ट्रैवलर हर कोई सफर करता है, करेक्ट, ऐसा तो नहीं है कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप का करता है, या फिर कोई पर्टिकुलर मिडिल क्लास ही करता है, या हाई क्लास ही करता है, या फिर लोअर मिडिल क्लास। हर क्लास ऑफ पीपल के लिए इसमें स्टोरीज हैं, हर एज ग्रुप के लिए स्टोरीज हैं, और हर इंसान के लिए इसमें स्टोरीज हैं जैसे। और थॉट ये था एक्चुअली में कि जब ये बुक लिखूं एक्चुअली में, मतलब पब्लिश करूं, क्योंकि एक चीज और है, जब मैंने स्टोरीज लिखना चालू करी ना, तो देयर वाज नो थॉट कि मुझे बुक पब्लिश करनी है। एक्चुअली देयर वाज नो थॉट, इट जस्ट स्टार्टेड, इनिशियली इट जस्ट स्टार्टेड कि जैसे मैं अपने ब्लॉग पेज लिखता था, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं है, ठीक है, पोएट्री लिखता था, पब्लिश है, तो ये भी ऐसे ही चालू हुआ। और जब हुआ ना कि ये कलेक्शन हो गया मेरे पास, देन इट जस्ट स्ट्राइक माई माइंड कि मतलब कि अरे यार, व्हाई नॉट टू गेट दिस पब्लिश, तो आप पब्लिश कर लेते हैं, चलो मतलब इसको देखते हैं मतलब कैसे। तो कलेक्शन था, काफी सारा कलेक्शन था, तो इसमें जो पर्टिकुलर कहानी रखी है, मतलब कि ऐसा ना लगे कि यार सब, क्योंकि थीम ट्रेवलिंग है, तो अरे बस सब ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ही होते जा रहा है, ठीक है, मोनोटोनस हो जाएगा, राइट, रीडर्स के लिए भी काफी हो जाएगा। तो हर टाइप की जो मतलब हर टाइप का इंसान जो है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, कॉलेज का हो, आप किसी भी मतलब लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हो, इस ग्रुप में हो, तो हर इंसान से कनेक्ट कर सके, और इसके टॉपिक भी ऐसे ही है, रिलेटेबल है। ओके, तो दैट वाज द थॉट एक्चुअली, एंड या आई वाज गोइंग टू कम टू दैट पार्ट कि मतलब इसमें आपने जो थीम कवर किए हैं, so these are the aspects of life which a wide age group of people go through, मतलब youngsters से लेके तो till the people you have lived the life and in their sort of retirement phase, so everybody can relate. जो भी आपने उसमें theme, it is about job struggle, then following your dreams, then relationships and traveling, and some personal struggles are also there. तो और आपका जो बुक पे मैंने फीडबैक भी देखे, देयर इज अ वैरायटी ऑफ फीडबैक फ्रॉम अ एज ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो, लाइक वी कैन से फ्रॉम 20s टू mid 50s and like that. तो what was the most surprising feedback for you to this book, particularly yeah, the most surprising review actually generally बहुत सारे मोस्टली रिव्यूज ऐसे आए, क्योंकि इस बुक का जो फॉर्मेट है वो भी शॉर्ट स्टोरीज है एक्चुअली में, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज अल्टीमेटली जैसे है कि आप कम टाइम में कोई भी स्टोरी कहीं से पिक कीजिए, पढ़िए, और यू ऑब्वियसली द पर्पस इज एंटरटेनमेंट, राइट। तो बहुत सारे रिव्यूज का होता है कि चलो मतलब उनको लग रहा था कि शायद मैं थोड़ा और इसको डिस्क्राइब कर दूं, थोड़ा और लेंथियर फॉर्मेट में कर दूं मतलब स्टोरीज को। तो एक जो ऑड फीडबैक आया वो था रिव्यूअर्स का कि ये थोड़ा सा ना मतलब और ये मतलब डायरेक्ट होना चाहिए, स्टोरी टू द पॉइंट होना चाहिए। तो मतलब ये थोड़ा सा और था कि सब लोग तो बोल रहे हैं यार थोड़ा सा और उसको डिस्क्राइब कर देते और उसको थोड़ा सा और कर देते, तो ये थोड़ा और था मेरे लिए, मतलब ये थोड़ा फीडबैक। तो या तो थोड़ा सा अजीब था मेरे लिए ये सारा। तो जैसे आप बोल रहे हो कि शॉर्ट स्टोरीज, कुछ फीडबैक ऐसे थे कि शॉर्ट स्टोरीज नहीं किसी को भाती है, या तो दे वांटेड मोर डिस्क्रिप्शन। सो फ्यूचर में आर यू प्लानिंग समथिंग लाइक दैट, और वी कैन एक्सपेक्ट अनदर कलेक्शन फ्रॉम यू? या एक्चुअली बहुत सारी स्टोरीज ऐसे हैं जो ऑलरेडी है मेरे पास, मतलब है अनपब्लिश्ड है। मे बी आई नीड टू गिव इट अ थॉट एक्चुअली, आई ट्राई टू सी कि मतलब उसको कैसे करना है, उसी फॉर्म में करना है या फिर थोड़ा सा और रिव्यू एडिटिंग करनी है, दैट आई विल सी। बट
Sorry, what was the next question actually? What was the other part? अभी आप whatever you want to publish next or whatever you are working on, मतलब आपको short stories ही फिर से compile करनी है just like your previous book. नहीं है. You want to take that feedback seriously and write a complete novel kind of thing. Yeah. एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि फीडबैक के बाद मैं ऐसा कुछ चालू करने वाला हूँ. वो ऑलरेडी एक्चुअली में इन पाइपलाइन है मेरा. ऑलरेडी देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स, एक फुल लेंथ नॉवेल भी है और भी चीजें हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी है. किड्स के लिए भी मतलब मेरा एक सेक्शन है, स्टोरी सेक्शन, तो उनके लिए भी है कि किस किड्स, क्योंकि ये जो स्टोरी सेक्शन है ये 18-20 मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलेज ग्रुप अप टिल रिटायर्ड पीपल के लिए है. ठीक है, क्योंकि समहाउ जो भी है, और बिलो 18 इयर्स के लिए भी एक सेक्शन है, मतलब स्टोरीज का एक सेक्शन है. तो वो शॉर्ट नहीं होगा, दैट वुड बी लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी, बट या फॉर देम आल्सो, किड्स के लिए भी एक होगा. तो obviously it again like stories, right? It is not going to be monotonous. कि short stories है, it will be a variety. You'll see variety of kind of stories, novels. Yeah. Okay, so any particular like you said that you are working on a variety of projects, मतलब काफी सारे pipeline में है, novel है, then there are 4 kids. So what is there a particular theme that you are exploring for the first time, and what can we expect? मतलब हिंदी में, English में, because your Hindi stories are very interesting. Yeah. तो मैं थोड़ा सा चीजें एक्सपेरिमेंटल भी करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली में, एक्सपेरिमेंटल बेसिस. तो पहले तो ये जो बुक है मोस्टली आई विल, ऑल्दो कुछ स्टोरीज हैं जो मेरी लाइफ रिलेटेड हैं, मतलब विद अ मिक्स ऑफ फिक्शन, बट मोस्टली इट्स अ फिक्शन एक्चुअली. तो नेक्स्ट बुक जो है आई एम टारगेटिंग इट टू बी नॉन फिक्शन एक्चुअली. तो फिक्शन में थोड़ा सा अभी थोड़ा कुछ टाइम के लिए उसको थोड़ा सा पार्क कर रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ एक्चुअली में. तो नेक्स्ट आई एम लुकिंग मिस टारगेटिंग माई नॉन फिक्शन बुक एक्चुअली. तो उसके बाद आई एम प्लानिंग टू देयर अदर एक्सपेरिमेंटल है कुछ चीजें, जैसे वो किड्स वाला बताया मैंने. तो थोड़ा सा होगा ना फैंटेसी वर्ल्ड में, मतलब किड्स को कैसे पसंद रहता है, थोड़ा फैंटेसाइज वर्ल्ड, जैसे जिसने हैरी पॉटर सुना होगा, या फिर जैसे कोई भी किड्स के जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन होगा. मे बी नॉट दैट लेवल ऑफ फैंटेसी, बट देयर इज सम काइंड ऑफ फैंटेसी लेवल काइंड का होगा, जो थोड़ा मेरा एक्सपेरिमेंटल होगा. और उसके अलावा ऑब्वियसली मेरा, क्योंकि हर चीज एक एक्सपेरिमेंटल ही है अभी तो, जैसे क्योंकि अभी फर्स्ट बुक ही है ये, तो सेकंड भी नॉन फिक्शन जो होगी. नॉन फिक्शन भी एक्चुअली में वो भी आई वुड से कि लेट्स सी कि रीडर्स को कैसे पसंद आती है, क्या पसंद आता है, देन मे बी आई विल सी कि मतलब आगे उसके आगे क्या करना है. तो we will surely wait for you, because you have been blogging for so many years, and फिर आपने एक collection publish भी की है. So even if you have one book published, you have a very wide experience of writing and expressing your experiences. कि लाइफ एक्सपीरियंस में हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, यू लव शेयरिंग दैट विद पीपल. सो दैट ब्लॉग में एक्चुअली आई स्टार्टेड इन 2008. अभी कितना 17 इयर्स हो गए एक्चुअली में. 17. आई हैव नॉट बीन राइटिंग दैट फ्रीक्वेंटली, बट ओकेजनली राइट करता हूँ. और कुछ चीजें होती हैं, जैसे मेरे को पता है कि पब्लिश करना है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट पुट इट पब्लिकली एक्चुअली. तो मे बी आई विल पब्लिश लेटर ऑन दैट, बट या सो चल रहा है, मतलब बहुत टाइम से, मतलब ये सब चीजें हैं. तो बहुत बढ़िया. अभी मतलब इफ यू वांट टू डेडिकेट मॉनसून एक्सप्रेस टू योर ऑडियंस इन वन लाइन, आप एक लाइन में कैसे डेडिकेट आपके बुक? तो ये ऑलरेडी मैंने डेडिकेट करी हुई है, बुक पे हैवी लिखा भी हुआ है. तो मैं जो बुक है एक्चुअली में ये है ना, एक मुसाफिरों को मतलब डेडिकेट करता हूँ. और एग्जैक्ट वर्ड कहूँ तो जो घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, घुमक्कड़ों को समर्पित है ये बुक एक्चुअली में, जो घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और खासकर जैसे जिनको ट्रेन जर्नीज पसंद है, मॉनसून का वेदर में घूमना पसंद है, तो उन लोगों को मैं ये बुक डेडिकेट करता हूँ. और बाकी तो है, कोई भी लोग इसको पढ़ सकते हैं, मतलब सबसे रिलेट करती है. बहुत बढ़िया. वी आर रियली इंटरेस्टेड इन योर बुक. Now, जैसे आपको पता, you have been active on TLB for a few months, and you are seeing that
लोग TLB एनुअल इवेंट की तैयारी में लगे हुए, everybody is bustling and TLB event is just around the corner. Next weekend we have the event. So can we expect you to see there? Can we meet you there? Actually, this event is in Delhi and currently I'm in Hyderabad. Maybe possibility is less actually, but yeah, maybe not this time. Maybe next time I'll try to attend the event. But obviously, I have a curiosity to attend such event to obviously connect with my personal interest as well, to meet new people, maybe authors and readers and so many people would be there. So I'm looking forward, but maybe whenever possible, soon as. It would have been really nice to meet you there, but yes, we not all of us are full-time writers. I am also engineer by profession, so मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल हो जाता है balancing professional life and our hobbies. But still, hope to meet you someday. जैसे आपने बोला कि you are very fond of traveling and train journeys and spontaneous decisions. So I think we should have a rapid fire. Are you interested in that? Yeah, go ahead. I'll try my best. So, before we start the rapid fire, let's see. We have a lot of audience today on the live. So, what are people saying about your book? Okay. So, any questions? If there are any questions, quick questions, then I can take up that as well. Yeah, so we will just see if audience has any questions. We have Vyas Dipti. She says, congratulations, author Satish Kumar, for your book and waiting for your upcoming books. Yeah, thank you. We have Rahul Anmol. Title of the book is really nice, Monsoon Express. I would like to read this, and this is a perfect time to launch as monsoon season is on. So that's a very good compliment from Rahul. It's a coincidence. मतलब इत्तेफाक ही है कि मतलब इस टाइम पे मेरी एक्चुअली 2 months पहले ये बुक लॉन्च हुई एंड मानसून वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. तो अभी इतने टाइम में मतलब मैं थोड़ा लोगों को मतलब बता रहा हूँ ये बुक है, ये जैसे है, तो मींस इंसिडेंटली मतलब है कि मतलब पीपल कैन रिलेट, मतलब जिनको मानसून पसंद है दे आर इफ एंड और कोई भी बंदा कहीं पे भी जर्नी कर रहा है, और ऐसा नहीं कि ट्रेन जर्नी, आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तो दिस बुक विल बी अ ट्रैवलर्स कंपेनियन, दैट्स व्हाट आई कॉल इट. और सफर में हम सफर, मतलब पीछे भी है सफर में हम सफर है, तो आप सफर में. बुक की टैगलाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो rapid fire round. You have mentioned it a lot of times. मतलब आपकी बायो में भी लिखा है, and your book is on that. But if train is not available, car trip or plane ride? I would go for car drive. Depends on the obviously distance as well. If it is 3,000 kilometers, obviously but yeah, if it is commutable, means comfortable to go on a drive, I'll go for car drive. Yeah. Okay, so let's start with rapid fire. So long train journey with strangers or short flight with your friends? Long train journey. Then most scenic railway route you have ever been? Yeah, it's Konkan Railways actually. When you go from towards मुंबई से जैसे जाओगे ना, मुंबई से गोवा जाओगे, तो I think that's where actually that there is a बहुत scenic route है, और मतलब you'll get fan of railways. I can back you that. I have stayed there 2 years, so it's the most beautiful region. I would totally agree with you. Konkan Railways, yeah, I'm fan of that actually route, train route, yeah. Absolutely. One Indian city which you think deserves a book? One Indian city deserves a book. Obviously, there is not one, and I would say 2 actually, mostly, because और किताब की कहानियों में भी ना, मतलब वो फ्रंट में ही है. पहला मतलब पुणे, क्योंकि एक्चुअली मैं पुणे में था, और जो वेदर के हिसाब से ना, जैसे मॉनसून में घूमने फिरने वाला जैसे रहता है ना, तो पुणे इज द बेस्ट प्लेस टू मतलब अभी भी मैं पसंद करता हूँ पुणे को. और आप कभी भी निकल जाओ, आपका वीकेंड जैसे आज है, बैठा हूँ ना, यू विल गो 2 घंटे के ड्राइव पे कहीं पे भी निकल जाओ, तो पुणे एंड ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर, तो उन 2 प्लेसेस के लिए मैं ये बुक जरूर कहूंगा कि दैट इज अ मस्ट रीड फॉर देम एक्चुअली. और शुरू की जो 2 कहानियां है ना, वो उनसे ज्यादा कोरिलेट भी करती हैं.
बाकी तो है ही, बाकी अदर प्लेसेस की, पर पुणे एंड दिल्ली। से पुणे एंड दिल्ली आप चाहते हो कि उसके बारे में किताब लिखी जाए. आई होप यू वुड बी द ऑथर सम डे टू राइट अबाउट दोज टू सिटीज. Yeah, That was maybe it. detail something. Yeah, let's Yeah. see. Mountain or beach? Beach. Okay. A word often in your stories. Sorry, it's your voice break actually. Can you please A come again? word, a word that you use very often in your writing. एक्चुअली मेरे को थोड़ा फीडबैक भी मिले हैं, एक जैसे हम लोग कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कुछ ये भी है, ये भी है, मतलब इस टाइप के कुछ वर्ड्स थोड़े बहुत ज्यादा यूज हुए, जैसे आप भी कीजिए, मतलब ऐसा कुछ है, एक दो चीजें हैं जैसे कुछ रिपीटेडली यूज हुई है। और हम लोग थोड़ा फीडबैक भी मिले हैं, थोड़ा सा करेक्ट करने की भी कोशिश करी है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे आया, जैसे होता है ना अलग अलग प्लेसेस पे, और वो क्यों आया एक्चुअली उसकी भी एक वजह है। जैसे आप मुंबई में रहोगे तो लोगों का एक अलग लहजा रहता है, अलग तरीके से बात करते हैं, अरे अपन जाएंगे, वो जाएंगे, क्या कर लेंगे, मतलब उस टाइप से, ठीक है। और आप हैदराबाद में रहेंगे तो थोड़ा अलग लहजा रहेगा। तो मेरा जो, वैसे मैं दिल्ली से हूँ, पर मेरा जो लहजा है ना वो एक्चुअली पूरा मिक्स हो गया है, इतने सारे प्लेसेस लोग। सिटीज में रहते हो तो वो एक इफेक्ट आ ही जाता है आपके वो लैंग्वेज में. तो कुछ Yes. कुछ है, मतलब वो रिव्यूअर्स के भी आए, मतलब ऐसे कि भी, जैसे कुछ कुछ शब्द मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ कि ये भी है, वो भी है, मतलब ऐसा कुछ है, मतलब ये एक दो चीजें हैं ऐसे रिपीटेड आ जाती हैं। Okay. One author who inspires you the most. हु इंस्पायर्स मी द मोस्ट, एक्चुअली मैं ऐसा कुछ इंस्पिरेशन, ऐसा एक्चुअली ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कि ऐसे कुछ कि मैंने कुछ इंस्पिरेशन है, बट ऑब्वियसली मेरे लिए ऐसा है ना कि मतलब रीडिंग इज जैसे रीडिंग, मैं किसी ऑथर, मैं टेक्स्ट बुक भी है तो मैं टेक्स्ट बुक भी पढ़ लेता हूँ, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है मेरा। तो बाकी जो मैंने पढ़ी है, मतलब कि क्या कहते हैं आजकल, जैसे पहले तो हम मुंशी प्रेमचंद जैसे होते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद जी के पढ़ते थे, और ये बचपन में मतलब टेक्स्ट बुक में तो मतलब उसी टाइप की कहानियां थी जो भी था, तो कहीं ना कहीं मतलब माइंड में तो बस वही था, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी, रिसेंटली इसमें भी कभी पढ़ी, जैसे जब मैं अपनी बुक के स्टोरीज मैंने एक्चुअली मैं लिख ली थी, तब मैं देख रहा था लेट्स सी कि मतलब बाकी लोगों ने कैसे लिखी है, तो ऐसे मुंशी प्रेमचंद की भी पढ़ी है, पर ऑब्वियसली वो जो कनेक्ट है वो उस एरा का है जो उनके टाइम का था, ऑब्वियसली आई डू रिस्पेक्ट देम, मतलब उनके जो है, पर या इंस्पिरेशन मतलब उनसे मिला है, पर जो भी चीजें हैं, पर मेरा हाँ एक जो चीज मैं बताना चाहूंगा बुक के बारे में, एक्चुअली में जो चीज बाकी बुक से अब बात हो रही है, तो बाकी चीज से जो मतलब बाकी बुक से जो इसको जो डिफरेंट बनाती है वो है कि इसका जो ऑब्वियसली जो राइटिंग स्टाइल है, जैसे हिंदी का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब सिंपल रखा है, आप नॉर्मल हिंदी रीडर भी है ना, ठीक है, वो आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी वाली हिंदी नहीं है ऑब्वियसली कि टेक्स्ट बुक वाली हिंदी नहीं है, अरे यार क्या शब्द लिख दिया, ये तो हम आजकल यूज ही नहीं करते, बहुत बोरिंग हो जाएगा ये, तो वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, और वो नेचुरली केम एक्चुअली, जैसे जर्नल लिखता था ना, तो वैसे ही स्टोरीज की जैसे जो लैंग्वेज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आई अपने फॉर्म में। तो लैंग्वेज को ऐसे रखने की कोशिश करिए कि मतलब कि कोई बंदा बोरिंग ना फील करे, आज की जैसे जैसे मैं आपसे इंटरव्यू पे बात कर रहा हूँ, ये चिट चैट कर रहा हूँ, तो वैसी ही लैंग्वेज एक्चुअली में बुक की लैंग्वेज है, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड्स भी आएंगे बीच बीच में, क्योंकि हम यूज करते ही हैं, उसमें कोई दोराई नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, और इंस्पिरेशन में सब रीडर्स मतलब ऐसा लगता है दैट रीडर्स वुड फील दैट ऑथर इज टॉकिंग टू देम, सो दैट इज अ वेरी गुड, दैट इज माय बेस्ट ट्राई, या दैट इज माय बेस्ट ट्राई, और सबके लिए कहानियां हैं, मतलब दैट आई ट्राई एक्चुअली, या। So that's very nice. I have last two questions for the rapid fire. So one app which you cannot live without traveling. Traveling के टाइम पे आप कौन सा ऐप है जो हमेशा यूज करते हैं? Okay, so that depends on the mode of traveling also. So अगर ट्रेन जर्नी है तो मैं IRCTC जरूर डाउनलोड करता हूँ and actually I incidentally actually मैं I like IRCTC वेबसाइट also. मे बी ये प्रमोशन के लिए नहीं है एक्चुअली में, नॉट है। तो जैसे होता है ना कि आपके पास कुछ टाइम पास नहीं है ना, जैसे आप जनरली, मेरे को क्या पसंद है, जैसे एक बार आपने अपने कहीं घूम फिर के आ गए, नेक्स्ट टाइम पे आपको घूमने फिरने जाना है, तो मैं ऐसे ना ट्रेन देखना चालू कर देता हूँ IRCTC पे
कि कौन सी ट्रेन कहाँ से है, मतलब कि वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे इंटरेस्टिंग लगता है, मतलब ऐसे ही ट्रेन कहाँ, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, क्या रूट है ये, मतलब ऐसे थोड़ा पसंद है, मतलब ऐसे ही। तो अगर ट्रेन है तो IRCTC जरूर होती है मेरे पास ये, अदरवाइज तो जो भी बुक किया है मतलब वो ऐप डाउनलोड करनी है, मतलब ऐप, हाँ मतलब ट्रेवलिंग रिलेटेड ही, मतलब जो भी टिकट वगैरह बुक करिए तो वैसे, हाँ। तो जैसे आपको ट्रैवलिंग आपका इंटरेस्ट भी है एंड इट इज योर इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग एज वेल, सो आई डोंट नो, दिस क्वेश्चन जस्ट केम टू माय माइंड, व्हिच इज वन सिटी व्हिच यू वुड नेवर ट्रैवल अगेन एंड व्हाई? वन सिटी आई वुड नेवर ट्रेवल अगेन, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। पता नहीं वो सिटी के लोग मेरे को मारेंगे एक्चुअली अगर पता नहीं, वैसे मेरे माइंड में आ नहीं रहा एक्चुअली में, मैं थोड़ा सा पूरा इंडिया का मैप ना ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ तो मतलब माइंड में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि सिचुएशन हैंडल किए, दैट्स वेरी दैट्स वेरी मैं इंडिया का मैप स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कैसा है ना एक्चुअली मेरा कैसा है ना, अगर कोई चीज मेरे को पसंद नहीं है ना तो भी एक्सपीरियंस के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि लाइफ मतलब मैं एक्सपीरियंस के लिए भी चला जाऊंगा एक्चुअली। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे को कुछ चीज पसंद है या नहीं पसंद है, इवन लोगों के साथ भी मेरा ऐसा है, चलो मेरी जिन लोगों के साथ नहीं बनती है ना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि अरे यार मुंह सड़ा के बैठ गया या फिर ऐसे करके बैठ गया, ठीक है, आई विल स्टिल मतलब इंटरेक्ट विद देम, चाहे वो पर्सनल लेवल पे है तो पर्सनली, मतलब पर्सनल है, और प्रोफेशनली है तो प्रोफेशनली भी, मतलब ऐसे रहूंगा। तो इस टाइप के है, ऐसा नहीं है, बाकी तो पता नहीं, मेरे को ऐसा माइंड में आ नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट कि ऐसा कुछ क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ये जस्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, आई डिड नॉट हैड प्लान टू आस्क दिस क्वेश्चन। Yes, my final question. If you want to describe Monsoon Express in one word, only one word, no cheating. सिर्फ एक शब्द। ट्रैवलर्स कंपेनियन। 2 शब्द हो गए। ओके, 2 शब्द हो गए तो, अच्छा यार, अच्छा 2 शब्द हो गए, एक ही शब्द, सिंगल वर्ड। थोड़ा सा मेरे को, एक सेकंड, मेरे को एक थोड़ा थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक शब्द में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, ठीक है, पैशन, मैं उसको पैशन बोलूंगा एक्चुअली में। तो यही मेरी जो ब्लॉग का है ना, वो भी थीम वही है, पैशन। तो अल्टीमेटली दैट इज द थीम, पैशन मैं बोलूंगा। तो अगर ब्लॉग पेज पे जाएंगे मेरा, तो वो भी मेरा ब्लॉग पेज का नाम भी पैशन ही है। That's nice. So, author Satish, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। You are not only an author, you are an enthusiast and a passionate person who has written about his experiences, and you know, these books really connect with the readers. So it was really nice knowing about your book. And one last thing actually before we wrap up, so I would like to tell, book के बैक कवर पे ना मेरे सारे डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस भी है और इंस्टाग्राम पब्लिक प्रोफाइल है, एनीबडी वुड लाइक टू कनेक्ट, मेरे को ऐसा कुछ क्लिक नहीं करना है कि एक्सेप्ट करना है रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ये सब मैंने मतलब रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, ब्लॉग पेज भी है, तो कोई भी रीडर, कोई भी लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मे बी जस्ट कैजुअली भी कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर बुक की वजह से या कुछ भी ऐसा है, तो कनेक्ट कर सकते हैं। और आई वुड लव कि अगर कैसा भी फीडबैक हो, और एक्चुअली मैं सबसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा फीडबैक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे बोल रहा हूँ कि जेन्युइन फीडबैक दीजिए, ठीक है। अगर आपको एक रेटिंग देनी है तो वो भी आई वुड डेफिनेटली वेलकम, ठीक है, और रीजन दे दीजिए, पर मतलब कि ऐसा कुछ आपको ये पसंद नहीं आई, ठीक है, आई वुड डेफिनेटली लव, जेन्युइन रेटिंग दीजिए, मतलब रिव्यूज दीजिए, अमेजन पे रेटिंग कर सकते हैं, बुक अमेजन पे अवेलेबल है, ठीक है, और पर्सनली भी रिव्यूज दे सकते हैं। और अगर जो बंदा रीडर है, अगर किसी को इंटरेस्टेड है, तो उन तक अगर बुक पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी, यू नो, फॉर मी दिस विल सपोर्ट आल्सो, एंड दिस विल अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक कनेक्शन वाई दिस बुक एक्चुअली, सो दैट माई पर्पस विल बी सॉल्व्ड एक्चुअली। सो द पर्पस ऑफ द बुक ऐसा नहीं है कि यार कुछ लिख दिया पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती पढ़ना है, इट इज जस्ट टू मेक दैट कनेक्शन। और शुरुआत भी वैसे ही हुई एक्चुअली में,
बुक तो बाद में आई, शुरुआत ऐसे ही हुई कहानी में. So Genuinely that's what I would feedback like to. is very important for every author. मतलब I Yeah. guess in the audience we have one of your readers because Usha Chauhan 1819 has commented, nice stories in Monsoon Express, keep it up. So Yeah. कमेंट फीडबैक जो है हमेशा जेन्युइन ही अच्छा लगता है. अच्छे फीडबैक पढ़ के हमें अच्छा लगता है. नेगेटिव Yeah. फीडबैक है तो वी हैव अ चांस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स. सो Yeah. आई वुड लाइक टू Yeah, टेल वो कोई ऑल दो रेटिंग भी देगा ना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उससे गुस्सा करने वाला हूँ. जस्टिफाई की मतलब क्या है, दैट आई कैन इम्प्रूव. कोई भी Yes, रेटिंग yes. दो, 1, 2, 5, 2, 4, 2, मतलब कुछ भी है. इट डिपेंड्स. या Absolutely. Yeah. हमारे ऑडियंस के लिए just like author said, you can check his book details on Amazon, and back cover पे he has different platforms for you to connect with him. You can connect with him on Instagram, then on YouTube channel that he has recently started. उनके blogs है almost since 2008, so you can interact with him on various platforms. And author Satish, thank you for giving your time today. And Yeah, it actually, was, thank you. nice Actually, talking to thanks you. a lot for your time. And I think, Miss, you are also an author. I can correlate with the Yeah. emotions which you write actually. So yeah, thanks a lot, and thanks a lot to TLB Club as well for organizing this. Yeah, I'm looking forward to have more sessions like this. Yeah. Yes, thank you. Thank you on behalf of TLB. We would also like to tell our audience that TLB event is just around the corner. Next Saturday on 19th July, we will be at Delhi for our annual event. You can stay connected. You can watch the event online. You can. Our details will be available soon on various platforms. So it was really nice interacting with author Satish today, and shower your love on his book as well as on TLB. And hope to see you all again with a different author next time. So Yeah, this is author definitely. Swamini signing off today. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Yeah, thank you, author Satish. Yeah. See you Good around. day. Yeah. Good day. Have a nice weekend. Yeah. Have a nice day. Yeah.